Hello students, our next chapter is income determination and multiplier. So let's begin this chapter of income determination and multiplier. Students, before we start up this chapter, first let me tell you that if you have not watched the earlier chapters video, then it will be a little bit difficult for you to understand this chapter. So it's a request that those who have not watched the previous chapter, or if you have not understood the previous chapter, please first listen to those videos and then switch to this new chapter, that is income determination and multiplier. So without wasting the time, let's start our video. First of all, children, let me ask you one thing, students. In class 11th, in microeconomics, we have studied demand and supply. Let me once again show you. क्लास 11th में हमने ये डिमांड और सप्लाई का पढ़ा था ना. आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. ठीक है. वी सॉ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी गेट इक्विलिब्रियम. हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है सबको पता है. सो वी सॉ व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड. वी नो दैट जब सप्लाई और डिमांड इक्वल है, सो वी गेट इक्विलिब्रियम ओवर हियर. सो दिस वाज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट वी हैव स्टडीड. अब in today's video what we are going to study something related to this only, that is equilibrium. So let's start. In today's video we are going to see AD, how AD will be equal to AS, means aggregate demand will be equal to aggregate supply. Followed. So let's see the definition first. An economy is in equilibrium when aggregate demand, that is AD, for goods and services is equal with aggregate supply, that is AS. AD stands for aggregate demand and AS stands for aggregate supply. So what is an economy is in equilibrium, means economy में equilibrium कब होगा, जब aggregate demand जो है goods और services की aggregate supply के क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. और ये कैसे होगी, this we are going to see in today's video. It's a very interesting topic. It's not so difficult, but you have to understand this, otherwise you will not understand. So our main topic today is how AD is equal to AS and how we will get equilibrium between when AD is equal to AS. Now students, first of all, just let me make you one thing sure. AD means what? All of you know. क्या होता है AD? Aggregate demand. So can we write like this? Just see. AD, जैसे मैंने लिखा है AD इज इक्वल टू AS. ठीक है. तो क्या हम AD को ऐसे नहीं लिख सकते, AD इज इक्वल टू C प्लस I, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. वी कैन राइट AD एज व्हाट, C प्लस I, एंड इन द सेम वे फॉर AS व्हाट वी कैन राइट, C प्लस S, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग. ये सब previous videos से linked है. If you have not watched the previous videos, that's why I am saying you will not understand anything. So we can write AD को हम C plus I लिख सकते हैं और AS को भी हम C plus S लिख सकते हैं. Right? Now we will cut C and C. C और C दोनों कट हो जाएंगे. So what we get is I is equal to S. That is investment is equal to saving. So these two things we are going to study in today's video. What we are going to study? We are going to study कि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है. By two approaches we are going to study. First approach is when AD is equal to AS, and second approach is when investment is equal to saving. By these two approaches we are going to see how equilibrium is achieved in our economy by both the approaches. So first we will start with the AD and AS approach, and then afterwards we will see this I and S approach. Getting it, students? Now students, just see. We get equilibrium at two places. Followed. First, either we get AD is equal to AS, या तो हमें AD या AS पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, और दूसरी बार हमें इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब I इज इक्वल टू S होगा. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमें दो अप्रोच आज के वीडियो में पढ़ने हैं. पहला अप्रोच है जब AD विल बी इक्वल टू AS एंड सेकेंड विल बी व्हेन I इज इक्वल टू S. ठीक है. सो which we are going to study in this today's video. So let us start our video by understanding the concept. See, today's video we are going to study two concepts. Two concepts is what? First is AD and AS approach,
मतलब हमें इक्विलिब्रियम या तो यहाँ मिलेगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, और दूसरा हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, इन इन्वेस्टमेंट एंड saving approach. So these are the two ways in which we are going to see how equilibrium will be achieved. Following. अब देखो AD और AS अप्रोच है और एक है इन्वेस्टमेंट इन सेविंग अप्रोच. देखो आंसर तो दोनों में से सेम ही आएगा, ठीक है, बट व्हाट वी हैव टू सी, either AD or A will be equal to AS or investment will be equal to S. Either AD will be equal to AS or we will see I is equal to S. बट फर्स्ट हम डिमांड और सप्लाई से आंसर निकालेंगे. डिमांड और सप्लाई मतलब वी विल सी हाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से कैसे हमारा इक्विलिब्रियम निकलता है, और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड वन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग से हमें कैसे इक्विलिब्रियम मिलता है. क्वेश्चन समझ में आ गया कि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे. हम लोग ये देखेंगे कि एडी और एएस अप्रोच से हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हमें कैसे अचीव होगा, ये फर्स्ट थिंग होगा. और सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा. फॉलोड. अब इक्विलिब्रियम सबको पता है, ऑल ऑफ यू वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी भी मैंने बताया अभी इक्विलिब्रियम का क्या होता है, मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी देन वी विल से दैट कि हमें इक्विलिब्रियम मिल गया है. सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट दिस वीडियो. अब देखो ये वाला पूरा जो चैप्टर है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर. Within 1 or 2 videos we can complete this chapter also. अब now first let us see this AD and AS approach. Now see children, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस डेफिनेशन में ये देखा है. क्या देखा हमने डेफिनेशन? We saw that AD is equal to AS. कब है AD is equal to AS? जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि AD और AS क्या है, दोनों इक्वल हो सकते हैं. सो यू कैन राइट लाइक दिस, जैसे कि मैंने ये बताया था ना, वी कैन राइट इन दिस वे, AD इज इक्वल टू C प्लस I और AS इज इक्वल टू वी कैन से C प्लस S. अच्छा, AS को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं और C प्लस S इज कंजम्पशन प्लस सेविंग. AS को हम इनकम कर्व भी बोलते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है. अब क्यों बोलते हैं तो इसलिए आपको वीडियो खोल के देखना पड़ेगा. सो ऑल द वीडियोज आर कनेक्टेड. व्हाट वी कॉल AS एंड इनकम आर सेम, वी कॉल बोथ ऑफ देम सेम. नाउ स्टूडेंट्स, let us see this schedule. Based on this schedule we will see how we will get equilibrium. Okay, so dekho same figures we are taking, what we are taking in all the other videos, because you know, so that there is no confusion between everyone. Here we have income, consumption is given, saving is given and investment is given. We have to calculate AD and AS. See, I have already calculated ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है. तो यहाँ तक दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, AD एंड AS. ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है. और AD कैसे कैलकुलेट होगी, C प्लस I, और AS कैसे, C प्लस S. नाउ सी, इनकम जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितना है 40, सेविंग कितनी हो जाएगी -40. इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितना होगा 120, सेविंग कितनी हो जाएगी -20. ये सारा मैं बता चुकी हूँ पहले के वीडियोज में कि ये कैसे आते हैं. सेम नंबर्स ले लिया है. इनकम 200 हो गई, कंजम्पशन भी 200 हो गया. इनकम 300 है, कंजम्पशन 280 हो गया. देन इनकम इज 400, कंजम्पशन इज 360. व्हेन इनकम इज 500, कंजम्पशन इज 440. ओके, सेविंग इस तरह 0, 20, 40, 60 हो गई. अब इन्वेस्टमेंट देखो सब में 40 है. क्यों मैंने सब में 40 लिया है? बिकॉज वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने कल के वीडियो में बताया था इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि एक बहुत कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट है. we need, that is why we are doing this basic investment. So always remember this investment will be constant. बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, AD कैलकुलेट करो. ये रहा C और ये रहा I. C प्लस I कर दो, 40 प्लस 40 80 हो गया है. देन 120 प्लस 40 यू गेट 160. 200 प्लस 40 ये आ गया 240. देन 280 प्लस 40 यू गेट 320. 360 प्लस 40 400 आ गया. 440 प्लस 40 आई गॉट 480. वेरी सिंपल, कुछ एक्सप्लेन करना है ही नहीं इसमें. फिर निकालो एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई का क्या फॉर्मूला है, C प्लस S. यहाँ पे देखो 40 प्लस -40 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा. देन 120 प्लस -20 कितना आ जाएगा, 100. ठीक है.
देन 200 माइनस 0, AS कितना आ गया 200, देन 280 माइनस 280 प्लस 20, सॉरी 280 प्लस 20 वी गेट 300, सब में बस C प्लस S कर देना है। 360 प्लस 40 400 हो गया, 440 प्लस 60 500 हो गया। क्लियर, आ गया सबको समझ में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये देखनी है, जस्ट लुक एट दिस स्केड्यूल। और क्या दिखाई दे रहा है हमें, हियर वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट स्टूडेंट्स लिसन प्रॉपरली, आवर एग्रीगेट सप्लाई एंड अवर इनकम आर सेम। देखो इनकम कितनी है लास्ट में 500 और हमारा सप्लाई कर्व कितना है, AS भी कितना है 500। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैंने हमेशा कांस्टेंट रखेगी। सी द शेड्यूल वेरी प्रॉपरली ऑल ऑफ यू, सी दिस शेड्यूल एंड सी वेयर। सबसे पहले हम लोगों को ये बताओ, ऑल ऑफ यू जस्ट टेल मी वेयर वी आर गेटिंग द इक्विलिब्रियम। वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम ओवर हियर, है ना, यहाँ पे क्योंकि AD और AS देखो यहाँ पे इक्वल हो गया है कि नहीं। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, हियर वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम। फॉलो, ठीक है, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं। एंड हियर वी ऑल्सो सी दैट अवर इनकम दैट इज AS एंड सप्लाई एंड इनकम आर सेम। AS और इनकम दे बोथ आर व्हाट, सेम। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर AD एंड AS अप्रोच। अब हमें क्या, ये तो AD और AS अप्रोच का स्केड्यूल हो गया है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ मिला, ये तो हमें शेड्यूल में पता चल गया, यहाँ मिल गया, बट कैसे मिला ये हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो इस इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली, अब हम लोग आओ देखते हैं। उसके पहले जस्ट अंडरस्टैंड दिस शेड्यूल, जस्ट लिसन। कैन यू सी इन दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, in this three cases, in the first three cases what conclusion comes to your mind कि यहाँ पर AD क्या है, AS से ज्यादा है। देखो इधर भी क्या है, AD ज्यादा है, AS कम है, AD ज्यादा है, AS कम है। यहाँ पे भी AD 240 है, AS 200 है। यहाँ पर भी AD 320 है और AS कितना है 300। So here can I write like this that AD is greater than AS। क्या कंक्लूजन हमें मिला है, in the beginning AD is greater than AS। और उसके बाद सेकंड, इस केस में क्या हो रहा है, AD इज इक्वल टू AS, मतलब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, AD इज इक्वल टू AS। और लास्ट फाइनली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ये देखो ये AD है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। सो हियर यू कैन राइट AD इज लेस देन AS। These three things we are getting in this schedule and this we have to now represent graphically by drawing the diagram, by drawing the graph of this. Understand? So let us draw the graph. First of all, just let me tell you, do you remember this? Always you should remember our investment curve is what? Constant. Then ये क्या है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है और उसके बाद थोड़ा ऊपर ये क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, सो दिस इज AD एंड AS अप्रोच एंड हियर वी हैव गॉट इनकम। ये तो एक बेसिक ग्राफ है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ सोचिए आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। ये हमारा इनकम एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे क्या है, AD और AS। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है जो कि हमेशा स्ट्रेट होती है। ये कंजम्पशन है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन ऊपर जा रहा है। और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, अब इसको जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए मैंने बताया था। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस वाले शेड्यूल का। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो here we draw in this way, x axis, this is y axis, this is income। ठीक है, ये हमारा इनकम हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग देखो ये बना देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था AD क्या था, व्हाट आई टोल्ड यू। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और देन वी विल ड्रॉ अवर सप्लाई कर्व। ठीक है, ओके, इट इज ऑल ऑफ यू नो दिस, सप्लाई एंड इनकम आर सेम। ये दोनों देखो
इनकम और सप्लाई दोनों बराबर है कि नहीं, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था और शेड्यूल में भी देख लो। शेड्यूल में एक बार फिर से बता दे रही हूँ। ये देखो, ये हमारा सप्लाई है, एएस मतलब सप्लाई है, और ये इनकम है। देखो इनकम और सप्लाई दोनों सेम है ना, मतलब दोनों बराबर है हमारे। तो ये देखो, ये हमारा सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सप्लाई कर्व जो है, ये मैंने पहले भी बताया था, इट इज एट हाउ मच डिग्री, इट इज एट 45 डिग्री। फॉलोड। नाउ सी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, एज वी नो दैट एएस एंड इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है हमारी बराबर है, एट बोथ आर सेम। सो हियर एट पॉइंट ई वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। बट स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ ओनली इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम से लेना देना नहीं है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के पहले यहाँ क्या हुआ और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। खाली इक्विलिब्रियम से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है कि यस इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, ड्रॉ कर दिया, छोड़ दो। नो, इक्विलिब्रियम के पहले क्या कंडीशन है और इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों भी चीज मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ सी, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम के पहले वाला एरिया मैंने शेडेड कर दिया है। अब इस एरिया की अभी हम लोग खाली बात करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम के पहले। इसके साथ साथ मैं आपको शेड्यूल भी दिखा रही हूँ। ये देखो, डायग्राम तो है और शेड्यूल भी है। यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल गया था, एडी इज इक्वल टू एएस। इक्विलिब्रियम के पहले वाला पार्ट जो मैंने शेडेड किया है वो ये हुआ। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है सप्लाई से बहुत ज्यादा था। इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है मार्केट में और सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज को ग्राफिकली भी अभी हम समझ लेते हैं। इसी चीज को देखो, मैंने ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये क्या रिप्रेजेंट किया है मैंने, कि यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज व्हाट कंडीशन, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई क्या है, कम हो रही है। अब आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद होगा कि नहीं पता नहीं। इन द लास्ट चैप्टर आई होप यू पीपल रिमेम्बर, डिमांड एंड सप्लाई हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद करो। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, ये देखो, ये तुम्हारा क्लास 11th का है ना, ये वाली जो कंडीशन होती है यहाँ पे क्लास 11th में हमने पढ़ा था ना, एक्सेस डिमांड की। दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, एक्सेस डिमांड। कुछ याद है कि नहीं, आप लोग सारा भूल चुके हो। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव स्टडीड डिमांड एंड सप्लाई। तो ये इक्विलिब्रियम के नीचे पहले का जो पोर्शन था, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सेस डिमांड। सो व्हेनेवर मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट, मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। नाउ लीव दिस। अगर मार्केट में आप लोग ये सोचोगे कि डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं मार्केट में, मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, बट उसको सेलिंग वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब प्रोड्यूसर्स कम हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर उस चीज की बार बार डिमांड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा कोई फोन है जो मार्केट में एकदम न्यू आया है, ठीक है, और इस फोन की प्राइस मान लो 30,000 है और ये फोन मार्केट में किसी के पास नहीं। सपोज एज्यूम करो कि ये मेरे पास है, ये फोन ये नया लॉन्च हो गया, तो इस फोन की मुझे एक्चुअल प्राइस 30,000 थी। जब मैंने देखा कि ये फोन किसी के पास है नहीं और अगर ये फोन मुझे सेल करना है, तो मैं अपने मन से कोई भी प्राइस इसकी कोट कर सकती हूँ, 40 भी ले सकती हूँ, 45 भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस फोन के ज्यादा सेलर्स मार्केट में है नहीं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मेरे पास ये फोन है, और इस फोन को अगर मैं मार्केट में लाके बेचूंगी तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसकी सप्लाई क्या है, सप्लाई बहुत कम है, और ये जो फोन है, मान लो ये ऐसा फोन है कि मेरे पास है और मार्केट में किसी शॉप में है नहीं और लोग इसी फोन की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोड्यूसर इस फोन को बना नहीं रहे हैं, ठीक है, और डिमांड लोगों की ज्यादा है, और मैंने ये फोन 30,000 में मान लो लिया है। तो जब मुझे पता चल रहा है कि इस फोन की सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं चाहूं तो इस फोन की प्राइस जो है 40,000 में भी सेल कर सकती हूँ कि नहीं, यस। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि खरीदने के लिए लोग सब तैयार बैठे हैं, कोई मुझे 45,000 भी दे देगा। मान लो कोई एक ऐसा ब्रांडेड फोन हो या कोई नई कंपनी का फोन आया हो जो अभी अभी लॉन्च हुआ, जो मेरे पास आ गया है, जो मार्केट में अभी आया नहीं, और बहुत लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमको भी ये फोन लेना ही लेना है। सो दिस इज द एग्जाम्पल चिल्ड्रन, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब माइक्रो की तो बात भूल जाओ आप लोग, माइक्रो से हमें कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो वाला पार्ट तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, बिकॉज इन क्लास 12 वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी माइक्रो, वी आर स्टडिंग व्हाट, मैक्रो। मैक्रो मतलब
माइक्रो में तो हमने किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था ना, प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में। वी आर स्टडिंग अबाउट व होल इकोनॉमी, ठीक है। और मैक्रो में कोई एक चीज से हमारा लेना देना नहीं, वी हैव टू सी अबाउट द होल इकोनॉमी, वी हैव टू स्टडी। सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हियर व्हाट वी विल डू, जहां पर भी हमेशा याद रखो, जहां पर डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी करेगी मतलब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। मान लो मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन ऐसी आती है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है और उसके लिए सप्लाई मार्केट में बहुत कम हो रही, मतलब उस चीज को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, लेकिन कंज्यूम करने के लिए लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो इन दैट केस हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी गवर्नमेंट, वॉट एवर गवर्नमेंट विल डू स्टूडेंट्स, इन सच केसेस, ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन होता है नहीं कि अब हम करें तो क्या करें, लोग तो डिमांड कर ही जा रहे हैं। और खाली गवर्नमेंट जो है हमेशा प्राइस राइज नहीं कर सकती है ना, गवर्नमेंट छोटी छोटी चीजों के लिए इकोनॉमी में, मान लो डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट के पास तो एक ही सोल्यूशन है कि चलो प्राइस इंक्रीज कर दो। बट गवर्नमेंट कभी भी सबसे पहले प्राइस इंक्रीज नहीं करती, सबसे पहले गवर्नमेंट ये सोचती है कि इस प्रोडक्ट को लोगों के पास कैसे से ज्यादा पहुंचा सके। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, सबसे पहले क्या करेगी गवर्नमेंट, उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा कर देगी। मतलब जो चीज लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करके भी गवर्नमेंट देख रही है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, लोग बार बार उसी चीज की डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन उसका सप्लाई मार्केट में उतना है ही नहीं, मतलब प्रोड्यूसर्स उतना उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएगी कि चलो इस चीज को आप लोग ज्यादा प्रोड्यूस करो, तो फिर क्या पता कुछ कंडीशन स्टेबल हो जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इन दिस सिचुएशन। सो व्हाट वी विल डू, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर प्रोडक्शन बढ़ा के भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर देगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का मतलब भी यही हो गया कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिला मतलब लोगों के पास पैसे आ गए, और पैसे आ गए तो लोग प्राइस बढ़ने पे भी उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इन सच सिचुएशंस, to maintain the stability, first either the government will increase the production or the government will increase the employment। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज करेगी। मतलब गवर्नमेंट विल इंपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी। मान लो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में उसके रिसोर्सेज नहीं है और लोग उस चीज को बार बार डिमांड कर ही रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स बना नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास सामान नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोड्यूसर्स को बोलेगी आप लोग ये टेक्नोलॉजी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लो, ताकि वो चीज का प्रोडक्शन हम भी उतना ही कर लें, ताकि लोगों के पास उस चीज की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट करती है कि नहीं, दीज आर द स्टेप्स व्हाट द गवर्नमेंट विल डू। क्यों गवर्नमेंट क्यों करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। अब इन सब के पीछे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम रीजन क्या है। एक सबसे पहला रीजन है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, बिकॉज डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, लोग डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर, बट सप्लायर्स आर, मतलब उस चीज का प्रोडक्शन या फिर उस चीज का सप्लाई मार्केट में उतना हो नहीं रहा है। सो दीज आर द 2-3 थिंग्स विच द गवर्नमेंट विल डू इन व्हेन इट विल डू, जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्यों करेगी, ताकि AD विल बी इक्वल टू AS। अब जब फाइनली ये सारे तरीके गवर्नमेंट ने अपना लिए, फिर भी गवर्नमेंट देख रही है कि डिमांड तो है बढ़ती जा रही है, कम हो ही नहीं रही है। इन सच सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, लास्ट में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भले लोग चिल्लाए अरे पैसा महंगाई बढ़ गई है, प्राइस बहुत राइज हो गया, पीपल विल शाउट, बट देन इन द लास्ट गवर्नमेंट डोंट हैव एनी ऑप्शन विद दैट नो, तो उनके पास प्राइस इंक्रीज करने के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो लास्ट में गवर्नमेंट ये देखती है कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हो गया, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर लिया, नई टेक्नोलॉजीज भी हमने इंपोर्ट कर ली, बट फिर भी हम डिमांड और सप्लाई को क्या हुआ, मीट नहीं कर पा रहे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज when aggregate demand is less than aggregate supply. First situation you have understood, when aggregate supply is more than when aggregate demand is more than aggregate supply. Second is
व्हेन डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, मतलब सप्लाई ज़्यादा है और लोग उस चीज़ के लिए डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, मीन्स वेरी लेस पीपल आर डिमांडिंग एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. So in such case we can say that aggregate demand is less than aggregate supply. So automatically what will happen? Production will decrease. Why? Because the supplier will think that why I should do more production when people are not demanding. जब किसी particular commodity की demand ही नहीं है तो producer उसका production भी कम कर देगा. Next time he will reduce the production because very less people are demanding. So here in this way this is how aggregate demand is लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. सो इन सच सिचुएशन प्रोड्यूसर्स अपना डिमांड कम कर देंगे. लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है दिस वन, दिस AD इज इक्वल टू AS. AD इज इक्वल टू AS मीन्स व्हाट? दिस इज विच पॉइंट? सी, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. हियर वी आर गेटिंग व्हाट? इक्विलिब्रियम पॉइंट. दैट मीन्स जब हमारा AD जो है AS के इक्वल में है, दिस पॉइंट इज नोन एज स्टूडेंट्स इफेक्टिव डिमांड. अब देखो इफेक्टिव डिमांड किसको बोलते हैं? ये जो 400 है इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जा रहा है. इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये होता है कि मीन्स ये डिमांड पूरी कर सकते हैं. दिस डिमांड कैन बी फुलफिल्ड. मतलब इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे डिमांड 400 है और सप्लाई भी 400 है. इफेक्टिव डिमांड का मतलब यही है कि ये डिमांड जो है ये पूरी हो सकती है, बिकॉज same number of units is demanded and same number of units is also being supplied in the economy. Sorry. So that's why we call it as what? Effective demand. ठीक है? Because supply भी उतनी है और demand भी उतनी है. So very very simple it is. So students, this is what AD and AS approach. Now today's video, as I told you in the beginning, आज हम लोग इक्विलिब्रियम हमारी इकोनॉमी में दो तरीके से कैसे देखेंगे. पहला अप्रोच था AD एंड AS अप्रोच के थ्रू, और सेकेंड अप्रोच हमारा कौन सा था? आई टोल्ड यू थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग से हमारी इकोनॉमी में हमें इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा. तो ध्यान से देखो, वी विल कंसिडर दिस शेड्यूल ओनली. ना सी स्टूडेंट्स, जब हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग की हम बात करते हैं तो हमें AD और AS से कोई लेना देना नहीं. वी आर नॉट कंसर्न विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. हमें क्या लेना है? हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग से देखना है. ठीक है? हमें ना तो AD निकालना है यहाँ पे, ना ही हमको AS निकालना है. सो वाई वी ओनली नीड दिस टू कॉलम्स. अब इन्वेस्टमेंट किस में आता है? ऑल ऑफ यू टेल मी. इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर AD. ठीक है? एग्रीगेट डिमांड में आता है बिकॉज AD इज इक्वल टू C प्लस I वी नो. अब डिमांड कौन करता है? हम ही लोग डिमांड करते हैं ना. वी आर द पीपल, वी डिमांड. सो हियर इन्वेस्टमेंट हु इज गोइंग टू डू? वी आर ओनली गोइंग टू डू. ठीक है? और एक बात बताओ, सेविंग किस में आती है? सप्लाई में आती है. ये वाला पार्ट याद है ना? सी, AD इज इक्वल टू C प्लस I. मतलब इन्वेस्टमेंट किस में आता है? डिमांड में आता है. और सप्लाई AS इज इक्वल टू C प्लस S. इट मीन सप्लाई किस में आता है? एग्रीगेट सप्लाई. और हु इज डूइंग सप्लाई? सप्लाई भी हम ही लोग करते हैं, डिमांड भी हम ही लोग कर रहे हैं. सॉरी, मीन्स वी आर द पीपल, वी आर डिमांडिंग ऑल्सो. हम लोग कंज्यूमर हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर भी हैं. वी आर बोथ द थिंग्स वी आर ओनली डूइंग. इट मीन्स we all are doing, we are demanding the goods also as well as we are supplying. Now students, just see, just look at this same schedule we will take in. Here we don't have to calculate AD and AS. Just look at this, saving, investment, saving, investment. In all the cases investment is same, but just see up to here. See here we are getting equilibrium where when our saving is 40 and our investment is also 40. Here we are getting what? Equilibrium with the investment and saving. It means हमारा यहाँ पे investment और saving क्या है? Equal हो गया. ठीक है? 40 और 40 यहाँ पे हो गया. अब as I told you, equilibrium के पहले क्या कंडीशन है हमें वो भी देखना है, और equilibrium के बाद में क्या है. equilibrium के पहले वाली कंडीशन क्या है? देखो, जब हमारी सेविंग -40 है, our investment is 40. When our saving is -20, our investment is 40. When our saving is 0, our investment is 40. So in all the cases what is happening कि यहाँ पे क्या है? हमारी saving कम है और investment ज़्यादा है. So I can write like this, investment is greater than saving. कहाँ पर? Only
इन दीज केसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब देखो इन्वेस्टमेंट सेविंग से ग्रेटर कैसे है, ध्यान से समझो। और लास्ट में क्या है हमारा, ये देखो लास्ट केस इज व्हाट, हियर वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 40, सेविंग कितनी है 60। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, second investment is equal to saving, and the last one is investment is less than saving. Now first we have to now see why our investment is greater than saving. अब जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा सेविंग से तो क्या हो जाएगा, डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, ठीक है, डिमांड विल इंक्रीज। और अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, डिमांड कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, जस्ट आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है का मतलब ये है कि हम लोग हमारी इनकम का ज्यादा पार्ट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेव करने के बजाय वी आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, और सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेविंग वाला पार्ट सप्लाई में आता है कि नहीं, इट मीन्स एज अ प्रोड्यूसर आई एम थिंकिंग, एज अ प्रोड्यूसर, नाउ लिसन केयरफुली, एज ए प्रोड्यूसर मैं ये सोच सकती हूँ कि हमारी इकोनॉमी में जैसे मैंने प्रोडक्शन किया है 100 यूनिट्स का, ओके, मेरा प्रोडक्शन है 100 का, एग्रीगेट डिमांड 100 की है और मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, ध्यान से सुनो अभी। तो व्हाट आई विल थिंक कि मेरे सामने जो कंज्यूमर है वो मान लो 80 रुपीज का ही कंजम्पशन करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा कि अपनी इनकम का 80 रुपीज का क्या कर लेगा, वो कंजम्पशन कर लेगा और बाकी 20 रुपीज सेव कर देगा। ऐसा मैं सोच रही हूँ, मैं एज अ सप्लायर सोच रही हूँ कि कंज्यूमर 20 रुपीज सेव कर लेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कंज्यूमर क्या सोच रहा है, कंज्यूमर ये सोच रहा है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं उस 100 में से 60 को सिर्फ कंजम्पशन करूंगा और बाकी 40 रुपीज मैं पूरे के पूरे कहाँ डाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। 40 कंज्यूमर क्या कर दे रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है और 60 का क्या कर दे रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ओके। मतलब जितना प्रोड्यूसर ने सोचा था, प्रोड्यूसर ने तो सोचा कि कंज्यूमर 20 रुपीज सेव कर देगा, लेकिन कंज्यूमर ने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब हम लोगों ने 40 की हमारी सेविंग कर दी और 60 हमने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब एडी में हमने देखा था कि C+I, व्हेन प्रोड्यूसर थॉट कि 80 का कंजम्पशन होगा और 20 रुपीज कंज्यूमर सेव करेगा, तो इस 80 का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन भी सिर्फ 80 का ही किया। प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन भी प्रोड्यूसर ने सिर्फ 80 यूनिट्स का किया या 80 रुपीज का प्रोडक्शन किया, ये समझो, एज्यूम करो, क्योंकि उसे लगा कि कंज्यूमर सिर्फ 80 का ही कंजम्पशन करेगा, बट कंज्यूमर ने तो सिर्फ 60 का कर लिया। इसका मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक है, और 80 का प्रोडक्शन कंज्यूमर ने तो कर लिया, बट हमने कंज्यूम कितना किया है, सिर्फ 60, और 40 हमने क्या कर दिया, 40 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो जब हम 40 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेन एवर वी डू एनी इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो डेफिनेटली हम डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर हम डिमांड करेंगे तो फिर से हमारी इकोनॉमी में हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो, दैट्स व्हाई आई शोड यू दिस। इस वाले केस में व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग में ये देख लो, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने 80 का कंजम्पशन नहीं किया, हमने कंजम्पशन सिर्फ 60 का किया है और हमने 40 रुपीज हमारे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। इट मीन्स हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ गया, प्रोडक्शन उसे इंक्रीज करना पड़ गया। समझ में आ गया ना, डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज पीपल आर सेविंग लेस and people are investing more. Only this is the simple reason. Understood? I hope everyone. But क्योंकि हम इन्वेस्ट ज्यादा कर दे रहे हैं तो अब प्रोड्यूसर बेचारा क्या करेगा, उसको हमारी डिमांड मीट करने के लिए अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, मतलब जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे इन्वेस्ट कर दे रही हूँ। मतलब मेरी सैलरी का या मेरी इनकम का जो भी पार्ट मुझे मिल रहा है, मैं उसमें से सारा पैसा क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी। इन्वेस्ट मैंने किया ही नहीं, सॉरी, सारा पैसा मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। व्हाट द पीपल आर डूइंग, दे आर सेविंग ऑल द मनी एंड दे आर नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी डिमांड जो है कम हो गई है।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो गई, लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा सेव कर दे रहे हैं। तो अब अगली बार प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन भी यहाँ पर क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि जिस चीज की डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों प्रोडक्शन करेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, जहां पर यहाँ पर देखो, इफ इन्वेस्टमेंट, ये पहला वाला केस, इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो प्रोड्यूसर ने जितना सोचा था हमने उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, वॉट एवर प्रोडक्शन ही इज डूइंग, उसे समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लो, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। इस केस में हम लोग सारा पैसा हमारा क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। इन दैट केस प्रोड्यूसर को अब ये लगेगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं है, सो ही विल डिक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम कुछ परचेज ही नहीं कर रहे, वी आर सेविंग ऑल द मनी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ परचेज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो सप्लायर या प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कर देंगे कम। सो इक्विलिब्रियम हमको कब मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना। सी स्टूडेंट्स, हियर वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम, 40 इज अवर सेविंग एंड 40 वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सी स्टूडेंट्स, दिस सेविंग इन एन इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री में ड्रॉ होता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि देखो इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, दिस इज अवर इनकम, दिस इज अवर इनकम। ठीक है, एक्स एक्सेस पे यहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था, जिसको मैंने कहा था इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। और ये कौन सा पोर्शन है, इक्विलिब्रियम के पहले वाला, मतलब जहाँ पे एडी क्या है, एएस से ज्यादा है। और ये कौन सा पोर्शन है, जहाँ पर एडी इज लेस देन एएस, मीन्स सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। और ये देखो, ये हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला फंक्शन है। यहाँ पर भी एक्स एक्सेस पे इनकम होगी और यहाँ पे वाई एक्सेस पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। अब यहाँ पे देखो, हमारी सेविंग स्टार्टिंग में 0 में नेगेटिव थी, तो नेगेटिव से ही कर्व स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हमारी सेविंग 0 आ गई। ये सब मैं कैसे बोल रही हूँ, एज पर द शेड्यूल आई एम सेइंग। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेविंग क्या हो गई, बढ़ रही है, सो अवर सेविंग इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम हमको यहाँ मिल रहा है, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे इक्वल कहाँ हो रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम जो है हमें एक साथ ड्रॉ करने हैं, इसीलिए ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देंगे, बस कुछ नहीं है इसमें, वेरी वेरी सिंपल। सो इस डायग्राम से वी कैन प्रूव दैट इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे इक्वल हो रहा है। और सेकेंड अप्रोच हमारा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जा रहा है, हियर वी आर गेटिंग इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट our today's video students. I hope you might have understood this. क्या क्या देखा आज हम लोगों ने आज के वीडियो में, we saw that दोनों भी कंडीशंस, मतलब कौन सी दो कंडीशंस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन दोनों भी कंडीशंस में हमारी इकोनॉमी में हमें इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी इनकम मल्टीप्लायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम मल्टीप्लायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।